So let's start with page number 8.105. Some theoretical topics, though it has been discussed in our business studies too. In your chapter financial management or financial markets, I think. So this was preferential allotment. नाम से पता चलता है preferential is a word being taken from preference. So we are going to allot the shares to a preferred group of persons. Like we are going to give the shares not to the general public, we will be giving our shares to a preferred group. And what that preferred group can be there, that is some identified persons, that can be your own CEO, that can be your own MD, that can be on your directors, part-time director, full-time director. You have a selected group of persons to whom you are going to allot these shares. So that shares we call preferential allotment. Outrightly, you are not going to the public to issue your shares. Rather, you identified a group of person, like it can be your banker even. It can be your life insurance corporation, जिससे आपने insurance करवा रखी है. So when you issue your shares to a predetermined group at a predetermined price, and that allotment we call what? Preferential allotment. So whatever he is writing, this can be asked in 1 mark or this can be asked in MCQ too. It means allotment of shares at a predetermined price. तो definitely face value से कम पे बेचेंगे क्योंकि आपके अपने जाने पहचाने बंदे हैं, right? It means an allotment of shares at a predetermined price. It can be even face value, it can be less than the face value, right? To an identified person who are interested in taking the shares of company. Who are they? Let me write for you. Like he can ask the question, promoters को जब shares दिए या वेंचर कैपिटलिस्ट, ये टर्म भी हम अपने बिजनेस स्टडी में यूज किया करते हैं एंटरप्रेन्योर वाले चैप्टर में. वेंचर कैपिटलिस्ट आर दोस कैपिटलिस्ट या दीज आर दोस पर्सन्स हु इन्वेस्टेड इन आवर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन लोगों ने हमारी कंपनी में क्या किया है? इन्वेस्ट किया है. दे आर रेडी टू टेक द रिस्क. They have a stake in our company. और promoters के बारे में सबको पता है. These are the person who for the first time brought an idea to start the company. ठीक है. So we can issue our shares to promoters, to venture capitalists, yes. Then financial institutions. Financial institutions like HDFC से आपने लोन लिया है, IDBI से आपने लोन लिया है. So इन institutions का आपकी कंपनी में क्या है? इंटरेस्ट है. आप इन institutions को भी जब आप अपने शेयर्स दोगे, या buyers of companies product or its suppliers. Buyer means your regular customers. 10-15 सालों से वो आपके regular customers हैं. आपकी उनके साथ अच्छी ट्यूनिंग है. Even your suppliers, even your creditors, they are also interested in your company. So you just are giving a provision to them. So whenever you are not going outrightly to the public to issue your shares, but you are issuing your shares to a selected group of persons or to a pre-identified group of persons such as promoters, venture capitalists, your own customers, regular customers, or to the financial institutions or even to your suppliers, that allotment we call preferential allotment. The companies require, yes, this is very, very important. दो तरह के रेजोल्यूशन होते हैं कंपनी में. One is ordinary resolution and other is special resolution. So whenever the company is deciding to issue its shares to this selected group of person for that purpose, ये question आ सकता है, which type of resolution is being required? We will be calling it a special resolution is to be passed. Means आपने मीटिंग बुलानी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ. आप एक मीटिंग बुलाएंगे, उसमें एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे जिसमें ये प्रपोजल रखेंगे. जब तक इस प्रपोजल को सारे मेंबर्स आपकी या मेजॉरिटी मेंबर्स इसको पास नहीं कर देते, तब तक आप ये वाले शेयर्स इन पर्सन्स को अलॉट नहीं कर सकते हो. So I am repeating the last line. The company is required to pass special resolution in the meeting of shareholders before proceeding with preferential allotment. So you can ask the question, what is the formality? What on the part of company is required to start the proceeding relating to preferential allotment? Then your answer should be on your tip. That is special resolution is to be passed in the meeting of shareholders. Then only we can proceed to allot these preferential allotment, right? Now next, again important for theory purpose, आमतौर पे लास्ट पेज रहता है. ठीक है, तो बच्चे सोचते हैं इसमें से थोड़ी ना आएगा, 8 नंबर के क्वेश्चन तो तैयार हो ही गए हैं. But you have to prepare each and every page for your board exam. This is private placement of shares. ये भी किया हुआ है हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज में. प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स. यहाँ पे भी आप आम पब्लिक को इशू नहीं करते हो, तो यहाँ पे आप किसको इशू करते हो? लेट्स सी.
इसका सेक्शन भी थोड़ा सा याद रखना भाई। सेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इट मींस एनी ऑफर of securities. Securities here means shares, that can be equity, that can be preference, or invitation to subscribe securities to a selected group. आप ऊपर वाले में प्री आइडेंटिफाइड वर्ड ही लिखो और प्री आइडेंटिफाइड की एग्जांपल्स जो उसने दी हैं वो लिखो। आप नीचे वाले में प्राइवेट प्लेसमेंट में यही लिखो सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन अदर देन बाय वे ऑफ पब्लिक ऑफर। मींस ये ऑफर फिर से पब्लिक को नहीं है, आप कुछ गिने चुने बंदों को ही अपने शेयर्स देते हो थ्रू इशू ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट एंड विच सेटिस्फाई द कंडीशंस स्पेसिफाइड इन द सेक्शन। सेक्शन 42 में जो भी कंडीशंस या रूल्स और रेगुलेशंस लिखे हैं उन्हें फॉलो करते हुए जब आप आम जनता को शेयर्स नहीं इशू करते, कुछ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को देते हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। और इनको शेयर इशू करके हमें फायदा क्या रहता है, इट इज इनएक्सपेंसिव। आपका प्रोस्पेक्टस की प्रिंटिंग का पैसा बच जाता है, आपका एडवर्टाइजमेंट का पैसा बच जाता है और आपको बहुत क्विकली पैसा मिल जाता है इन लोगों से। एंड देयर विल बी नो डिफॉल्ट एट ऑल बिकॉज दे आर नोन टू यू। आप उन बंदों को शेयर इशू करते हो हु आर ऑलरेडी फेमिलियर विद यू, विद योर कंपनी। अब इन सिंपल लैंग्वेज, हाउ securities offered to a selected group of person by issuing private placement offer is also known as private placement of share। रिपीट ही किया, जब आप एक सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ, यहाँ पे कोई प्री डिटरमिन्ड प्राइस नहीं है, ऊपर वाले में आपने लिखना है प्री आइडेंटिफाइड पर्संस और यहाँ पे आपने लिखना है सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस। लेट मी टेल यू बिजनेस स्टडीज में कौन से टॉपिक में ये है। इन द नेक्स्ट पीरियड वी विल बी रेफरिंग दिस sample paper of business studies, then I will tell you where he has mentioned this private placement of shares, flotation of shares है आपका कैपिटल मार्केट में। चैप्टर में कहता है इन दोनों टॉपिक्स की कोई अलग से जर्नल एंट्रीज नहीं है, आपको जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिखाई है वो शेयर्स की सिखाई है, वो चाहे प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर हो, चाहे वो पब्लिक को शेयर इशू करे हैं आपने, चाहे आपकी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है, इन ऑल कॉन्टेक्स्ट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल रिमेन सेम। नाउ वी हैव ESOP, दैट इज ESOP। फुल फॉर्म देखिए, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान। यहां पे स्टॉक इन्वेंट्री वाला स्टॉक नहीं है, यहां पे स्टॉक का मतलब क्या, बंडल ऑफ शेयर्स। आई एम रिपीटिंग द नेम ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान। लेट मी राइट इट फॉर यू। ESOP क्या है, इसका पहले प्रैक्टिकल भी हमारे सिलेबस में हुआ करता था, ओनली कॉन्सेप्ट से, ठीक है, ओनली थ्योरी। 1 मार्क के लिए आपको थ्योरी पढ़नी है और इन वाइवा द एग्जामिनर में आस्क फ्रॉम यू एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान। यहां पे आप अपने पुराने एम्प्लॉइज को हु आर परमानेंट विद यू, राइट, जिनको एटलीस्ट 5 या 7 साल हो गए हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किए हुए, जब आप उन्हें अपने शेयर सस्ते में देने के लिए एक ऑप्शन देते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल ESOP। ऑप्शन यू आर गिविंग टू देम, दे मे अवेल दिस ऑप्शन, दे मे रिजेक्ट दिस ऑप्शन। इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर देम टू बाय द शेयर्स, but whenever you are allowing your shares to your employees at lesser price, they will always be ready to become your shareholders। means वो employee से owner बनने को तैयार रहते हैं। again I am repeating, it is an option, it is not compulsion, right? This is what we call employee stock option plan। so he wrote a full-fledged paragraph, I am going to read with conditions etc। let's see इसमें से क्या question बन सकता है। it means an option is granted by a company to its employees and employee directors। so directors are also your employee। आप अपने रेगुलर वर्कर्स को या अपने डायरेक्टर्स को भी ये शेयर देते हो at a price that is lower than market price। अब ध्यान से सुनना एक बात, अगर आपको क्वेश्चन आए can the company issue the shares at discount, outrightly answer no है, ठीक है, डिस्काउंट पे शेयर नहीं इशू होते। which type of shares can be issued at discount or lower than the market price, then you will be saying employee stock option plan। पब्लिक को आप मार्केट प्राइस से लेस पे कभी नहीं इशू कर सकते। हमारे कंपनी से 2013 में वो सारा क्राइटेरिया डिलीट हो चुका है, लेकिन अगर वो पूछे किस तरह के शेयर डिस्काउंट पे या लेसर देन मार्केट प्राइस पे इशू हो सकते हैं, तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान वाला। ओनली वन एक्सेप्शनल केसेस देयर, जब आप अपने ही शेयर अपने कंपनी के एम्प्लॉयज को इशू करते हो तो आप वो डिस्काउंट पे दे सकते हो। दिस पॉइंट यू हैव टू फीड इन योर माइंड फॉरएवर। इट इज एन ऑप्शन और अ राइट। हमने उन्हें एक राइट दिया, जैसे राइट इशू नहीं होता था, राइट इशू क्या है वो भी हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज में किया हुआ है। राइट इशू वाज द ऑप्शन बीइंग गिवन टू आवर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू बाय द न्यू शेयर ऑफ द कंपनी। हम अपनी ही कंपनी के पुराने शेयर होल्डर्स को ऑप्शन देते हैं कि वो हमारी कंपनी के शेयर्स में दोबारा से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पब्लिक के पास जाने से पहले हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये ऑप्शन देते हैं भाई।
सेम इज हियर, आप जब भी आपको नई शेयर कैपिटल चाहिए, आप अपने एम्प्लॉइज को एक राइट देते हो. द राइट इज ग्रांटेड बाय द कंपनी, बट इट इज, yes, it is not an obligation, it is not compulsion for them. They are not supposed to buy the shares whatever you want to sell them. ठीक है, so this is an option being given to them. The employees may or may not exercise the option. ये मैंने पहले से ही बता दिया. So it is a yes, इसका another name क्या है? It is sweat equity. What is the meaning of sweat equity? Because they worked hard for our concern. It is because of their effort that our company is becoming prosper. ठीक है, कंपनी की prosperity, कंपनी की profitability, कंपनी की अच्छी पोजीशन हमारे एम्प्लॉइज के कारण ही तो हो रही है. So we just want to give a reward for their services. हम उनको उनकी सर्विसेज का रिवॉर्ड देना चाहते हैं भाई. So in order to, sweat का मतलब क्या, उनकी खून पसीना उन्होंने हमारी कंपनी में लगाया है. ठीक है, for that purpose we just want to give a reward to them. So it's another name of your ESOP as sweat equity. आप उन्हें उनकी सर्विसेज का रिवॉर्ड देते हुए आप अपनी कंपनी के शेयर्स उन्हें कम प्राइस पे इशू करने की एक ऑप्शन देते हैं, which we call ESOP. ठीक है, he has related it with sweat equity. Let me read. ESOP is a category of sweat equity. Sweat equity is a wider term than ESOP and includes issue of shares to promoters as remuneration for incorporating the company or for their services. Yes, this question can also be asked. Sweat equity is otherwise a wider term. क्योंकि स्वेट इक्विटी में सिर्फ एम्प्लॉइज को शेयर्स नहीं दिए जाते, स्वेट इक्विटी में वो शेयर्स जो आप प्रमोटर्स को इशू करते हो उनकी सर्विसेज के बदले में, वो भी उसमें इंक्लूड है. So sweat equity is a wider term which includes ESOP as well as shares to be issued to the promoters. But ESOP is a category of sweat equity. Now, a company may issue shares option fulfilling the following condition. So जब कभी भी कंपनी को ये ESOP वाला क्राइटेरिया अडॉप्ट करना है तो कंपनी को नीचे वाली कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा. That has been mentioned in our company set 2013. So let me read that conditions. उस पे भी क्वेश्चन बनेगा. 5 conditions are there. With this chapter will be over. Box पढ़ने की जरूरत नहीं है. That will confuse you a lot. वो पहले हुआ करता था क्योंकि वो points practical में use होने हैं. But practical is now thoroughly deleted from our syllabus. No need to read the terms given in the box. Right? Yes. Now come to the first condition. What he is saying. These shares are of the same class of the shares already issued. जो शेयर्स आप अपने एम्प्लॉइज को इशू करोगे वो कोई ब्रांड न्यू नहीं होने चाहिए, वो उन्हीं शेयर्स का पार्ट होना चाहिए जो ऑलरेडी इशू है. फॉर एग्जांपल, ऑलरेडी आपने पब्लिक को इशू करे हुए शेयर्स 12% प्रेफरेंस शेयर्स, तो दैट 12% प्रेफरेंस शेयर्स यू कैन गिव टू योर एम्प्लॉइज एज. ठीक है, सो दिस इज नॉट अ न्यू कैटेगरी ऑफ द शेयर्स. दीज आर द शेयर्स बीइंग ऑलरेडी इशूड टू द पब्लिक मेंबर्स बिफोरहैंड. मींस एम्प्लॉइज को ESOP प्लान देने से पहले आपने ये शेयर्स पहले ही मार्केट में इशू किए हुए हैं. इट इज ऑथोराइज. यस, ये भी स्पेशल रेजोल्यूशन इसके लिए पास होना चाहिए. जैसे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के लिए था ना, आई डिस्कस अर्लियर विद यू, जैसे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन शेयर होल्डर्स की मीटिंग में पास होना जरूरी है. सेम इज द केस विद व्हाट ESOP. उस रेजोल्यूशन में आप सारी बातें डिस्कस करोगे उस मीटिंग के मेंबर्स के साथ. The resolution specifies the number of shares. हम कितने शेयर्स अपने एम्प्लॉइज को देना चाहते हैं, करंट मार्केट का उसका प्राइस कितना है, कंसिडरेशन इफ एनी, एंड द क्लास और क्लासेस ऑफ डायरेक्टर्स, कौन से डायरेक्टर्स को देना चाहते हैं. सम आर माई फुल टाइम डायरेक्टर, सम आर माई पार्ट टाइम डायरेक्टर, कौन से एम्प्लॉइज को देना चाहते हैं. लाइक आपने डिसाइड किया मीटिंग में, मैं हर उस एम्प्लॉय को ये ऑप्शन दूंगा हु हैज कंप्लीटेड 5 years इन माई कंपनी. इट मीन्स क्या, अ न्यू फ्रेशर एम्प्लॉय जिसको अभी 1 साल ही हुआ है, he or she is not eligible to invest in ESOP. ठीक है, so these all conditions has to be specified in the special resolution, right? Yes, अगली कंडीशन उसने बोली थी. Not less than 1 year has at the date of issue elapsed since the date on which the company had commenced the business. एक बिल्कुल न्यूली एस्टैब्लिश कंपनी is not supposed to give ESOP to its employees. कम से कम आपका बिजनेस स्टार्ट हुए मीन्स मतलब कमेंसमेंट की डेट से लेके ESOP इशू करने की डेट तक 1 साल बीत चुका हो. मींस आपको 1 साल अपना बिजनेस स्टार्ट किए हो चुका हो, देन ओनली योर कंपनी इज एलिजिबल टू अनाउंस ESOP इन द मार्केट टू इट्स एम्प्लॉइज, राइट? These shares are issued in accordance with SEBI की गाइडलाइंस है. स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आपने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है. जो भी SEBI की गाइडलाइंस है उन्हें फॉलो करते हुए, जैसे आप जनरल पब्लिक को इशू करते हुए SEBI की गाइडलाइंस को फॉलो करते हो, सेम यू विल बी फॉलोइंग फॉर द इशूइंग. तो क्वेश्चन आ सकता है, is the guidelines or are the guidelines given by SEBI to allot the shares to the public are same for the ESOP too? Then your answer will be yes. In order to launch ESOP in the market or to our employees, we are supposed to follow SEBI's guidelines as we were following for the general public.
So here we ends up the theoretical part of the chapter. Thoroughly we discussed this chapter. If you are facing any doubt, you can discuss with me. Otherwise, I am going to pick your 91st illustration. 91st question from the back exercise. Okay? This is same as of your 63rd illustration which we discussed yesterday, right? Let's start. 91st question, last question of the chapter, 91st question. अगर किसी को कुछ पूछना है, किसी को कोई डाउट है, you people can ask your doubts from me. ठीक है? Take it as a revision session. अगर किसी को कुछ पूछना है, you are free to ask. Let me adjust this camera. Yes, let's see. 91st question from the back exercise. Question number 91. Yes, page number 8.126. Open that page. We have a company in the equation XYZ. So company is having the 2,000 shares to issue in the market, and each share is of 10. It is being issued at 4. Ditto as of that illustration. How this 14 rupees are to be covered? 5 plus 1 for application, then 1 plus 1 for allotment, 2 plus 1 for first call, again 2 plus 1 for second and final call, right? So how many applications we are getting? Over subscription का case है 3000. He says इसमें से 2400 के ऊपर pro rata लगा दीजिए. Means जिन्होंने 2400 के लिए अप्लाई किया है उन्हें 2000 दे दीजिए और बाकियों को रिजेक्ट कर दीजिए. 600 को हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया. इसका हम याद रखेंगे कि इसका पैसा वापस भी करना है. 600 into 6, ठीक है, that we will be refunding. 3600 हर केस में आप क्या करोगे? रिफंड करोगे, right? Now come to next. अगली लाइन ना भी लिखता. We used to do that. Excess money being received at the time of application is to be utilized against allotment only. Now we have to the two shareholders X and Y. मैं दोनों के working notes के बारे में पहले discuss करूंगी, right? X is a shareholder who has been allotted. 40 allotted दे रखे हैं. सबसे पहला step है, अगर आपके पास allotted है तो applied निकालो, क्योंकि आपने इसका excess निकालना है. So 40 उसके allotted shares हमें. I am going to calculate his क्या proportion है? 5:, बोलो, 5:6 का proportion है. तो मेरे को क्या निकालना है? This 40 is beyond 5. मेरे को 6 का निकालना है. 80. 48 इस बंदे ने अप्लाई किए होंगे. तो मिस्टर एक्स ने 48 के लिए अप्लाई किया था. जैसे ही उसने 48 के लिए अप्लाई किया, उसने ₹6 के हिसाब से हमें एप्लीकेशन मनी दे दी. हम ऐसे ही किया करते हैं. लेट्स मल्टीप्लाई. दिस इज 48 4 288. हाउ मच ही वाज सपोज्ड टू पे? 40 into 6. 240 उसको पे करना था. ही पेड 288. So what is the amount of excess of that person with me? 48 rupees. Mr. X का excess मेरे पास है. आगे उसने लिखा he didn't pay allotment money. तो allotment money मैं ड्यू पहले निकालूंगी X की, फिर excess एडजस्ट करूंगी, फिर देखूंगी उसका कॉज इन एरियर कितना है. उस बंदे ने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी. सो 2 डिफॉल्ट्स करने पे हम लोगों ने मिस्टर एक्स के शेयर्स को फोरफीट कर दिया, राइट? फर्स्ट कॉल के बाद आपकी इसकी फोरफीचर की एंट्री आएगी. ठीक, पहले अलॉटमेंट ड्यू करते हैं. सो अलॉटमेंट ड्यू कितनी है भाई उसकी? 40 into 2 80. अब वही वाला हिसाब. इस 80 में से 40 क्या है? फेस वैल्यू है, ठीक है, और 40 ही आपका क्या है? प्रीमियम है. तो आपके पास तो एक्सेस में है, आपका सारे का सारा फेस वैल्यू एडजस्ट हो जाएगा. 40 8 रुपए फिर भी बच जाएंगे, ठीक है, वो आप प्रीमियम एडजस्ट कर लोगे. इट मींस कि 32 रुपीज आपका क्या होगा? कॉज इन एरिया इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर अलॉटमेंट. और ये 32 का 32 यू नो प्रीमियम है, क्योंकि फेस वैल्यू सारी एडजस्ट हो गई. एज अ रूल 48 में से 40 रुपीज फेस वैल्यू थी, वो सारी की सारी एडजस्ट हो गई. 8 रुपए फिर भी एक्सेस बच गया. उस 8 रुपए को आपने यूटिलाइज किया टू कवर योर प्रीमियम, बट द प्रीमियम वाज ₹40. तो 40 में से 8 कवर हो गया एक्सेस में से. हाउ मच प्रीमियम हैज बीन लेफ्ट? दिस होल अमाउंट इज ऑफ प्रीमियम. जब आप फोरफीचर की एंट्री करोगे एसपीआर में आपको 32 लिखना. दिस मिस्टर एक्स इज नॉट पेइंग योर फर्स्ट कॉल टू. तो फर्स्ट कॉल का 40 into 3, he has not paid 120, right? Now I will be talking about Mr. Y. Mr. Y ने ना हमें फर्स्ट कॉल दी ना हमें सेकेंड कॉल दी, लेकिन मिस्टर वाई के बारे में ही प्लेड अ ट्रिक विद अस. मिस्टर वाई के अप्लाइड दे रखे हैं भाई. मेरे को यहाँ पे अप्लाइड से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसका डिफॉल्ट अलॉटमेंट का हुआ ही नहीं. अलॉटमेंट का हुआ होता तो मैं एक्सेस वगैरह कैलकुलेट करने के लिए अप्लाइड निकालती. अब यहाँ पे मेरे को अलॉटेड चाहिए, तो मैं वाई के अलॉटेड शेयर्स निकालूंगी. वाई के अलॉटेड शेयर्स कैसे आएंगे? दिस 72
इज बियॉन्ड, हाँ जी 6, और मेरे को 5 के पीछे निकालना है प्रपोर्शन. 6 was applied shares ratio 6:5, ठीक है. सो ही हैज बीन अलॉटेड 60 शेयर्स. इसका बहुत आसान है भाई. मिस्टर वाई को 60 शेयर्स क्या हुए हैं अलॉट. ₹3 ही आपकी क्या थी फर्स्ट कॉल, ₹3 ही आपकी क्या थी सेकेंड एंड फाइनल कॉल. इट मींस कि मिस्टर वाई हैज नॉट पेड 180 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 180 ऑन योर सेकेंड कॉल, ठीक. और वाई के शेयर सेकेंड कॉल के बाद क्या होने हैं फोरफिट. फिर दोनों के शेयर्स मिला के आपने क्या करना है री इशू. वो बाद की बात है, पहले स्टार्ट तो करें क्वेश्चन, ठीक है. सो अबाउट दिस वर्किंग नोट इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क. लेट्स सी on this part. Here I will be passing the entries and I will be erasing to pass the another entries. सबसे पहले how many applications we received 3000, right. तो एंट्री क्या बनेगी एप्लीकेशन की. बैंक अकाउंट डेबिटेड, yes. Once again he asked you to open the cash book here. तो आप बैंक वाली सारी एंट्री कैश बुक में डाल दोगे, बट एट अ स्ट्रेच आई विल बी पासिंग ऑल द एंट्रीज हियर. बस यू हैव टू डिफरेंशिएट कि कौन सी कैश बुक में आनी है और कौन सी आपने यहाँ पे करनी है, ठीक है. इलस्ट्रेशन की तरह मैं सारी एंट्रीज लिख दूंगी, देन यू कैन प्रिपेयर योर कैश बुक. Bank account debited to share application 3000 into 6, 18,000 you got. Now I am going to adjust. Share application account debited to share capital, और एप्लीकेशन के टाइम पे भी प्रीमियम था, टू SPR, टू शेयर अलॉटमेंट एक्सेस टू बैंक. बैंक के बारे में मैं पहले से ही आपको बता चुकी हूँ. 600 आपकी क्या थी रिजेक्शन थी. 600 into 6 3600 तो वापस कर दो ना, बाकी देखते हैं. दिस इज 18,000. हमारे पास देने को कितने शेयर है 2000. 2000 into 5 शेयर कैपिटल में जाएगा 10,000. 2000 into 1 SPR में जाएगा, सो दैट कम्स टू अस 12. 15,600. 18,000 में से 15,600 माइनस करिए 2,400 आएगा भाई. 15,600, हाँ yes 2,400 is excess, which we are going to adjust against what allotment. I solved this question, let me check. We are calculating same, yes 2,400 are ठीक. allotment adjust हो गई अब हमारी यहाँ पे. Again I am going to erase all these 3 entries and I am proceeding to allotment due. allotment due देखिए 1 है allotment पे, तो 4,000 allotment due रहेगी. See here, share allotment account debited, share allotment account debited to share capital to SPR. SPR means security premium reserve. Again and again I repeat in the class, you are not supposed to use your abbreviations in the paper. This is 4,000. 1 rupee face value है, 1 rupee ही प्रीमियम है. अब थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, ध्यान से देखिए. हमें अलॉटमेंट का मिलना चाहिए था 4,000. 4,000 में से ऑलरेडी 2,400 आपको मिल चुका है एप्लीकेशन के टाइम पे. एक्सेस एडजस्ट करो, आपको मिलना चाहिए था 1,600, राइट. अब 1,600 मेरे को मिलना चाहिए था, बट मिस्टर एक्स हैज मेड डिफॉल्ट. मिस्टर एक्स ने 32 रुपीज नहीं पे किए. इसमें से 32 बीच में से माइनस करिए, हाउ मच यू विल बी गेटिंग. दिस इज व्हाट 8, दिस इज 9, 6. 1,568 rupees you will receive at the time of your allotment. 1,568 only you will be receiving. You are supposed to receive 4,000, right? 2,400 already मिल चुका है एक्सेस की फॉर्म में एप्लीकेशन के टाइम में. This time you are just supposed to receive 1,600. उसमें भी मिस्टर एक्स ने क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया. 32 रुपीज नहीं मिले उसके, वो बीच में से माइनस करिए और इस अमाउंट से एंट्री पास करिए. अगर वो कहता कि कॉल्स इन एरियर ओपन करो तो आप कॉल्स इन एरियर डेबिट कर देते, राइट. 1,568 बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट. दिस इज 1,568. 1,568, राइट. नाउ कम टू नेक्स्ट. क्योंकि मिस्टर एक्स के शेयर फर्स्ट कॉल के बाद हम लोगों ने क्या किए हैं, फोरफिट किए हैं. सो फर्स्ट कॉल आई विल बी कॉलिंग ऑन ऑल द शेयर्स एंड द फर्स्ट कॉल के बारे में व्हेन आई सी दैट इज 2 + 1 दैट इज 3. ठीक है. शेयर फर्स्ट कॉल विल बी डेबिटेड विथ 6,000. शेयर फर्स्ट कॉल 6,000 टू शेयर कैपिटल टू SPR, राइट. शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 2,000 into 2 that is 4,000. 2,000 into 1 that is 2,000. अब ध्यान से देखिए. Yes, somebody raised hand. भावना बोलो, where are you? Was it a mistake or you want to ask anything? Bhavna, you can text me if you have any query. Yes, Mr. X is not paying 180 rupees.
मिस्टर वाई, सॉरी मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई इज नॉट पेइंग 180 रुपीज और मिस्टर एक्स के कितने शेयर्स थे? दैट वर 40 40 into 3, that is 120. Yes, somebody wants to ask something, let me see. Yes, what I was telling you, 180 y ने नहीं दिया, x के कितने शेयर्स थे? 40 40 into 3, 120 किसने नहीं दिया? x ने नहीं दिया, ये फर्स्ट कॉल का है। इट मींस कि फर्स्ट कॉल का 180 प्लस 120 आपको 300 नहीं मिला, मिलना कितना चाहिए था? 6000। 300 बीच में से माइनस कर दीजिए, 5700 से एंट्री करिए। बैंक अकाउंट डेबिटेड। अब फिर से कॉल्स इन एरिया यू कैन टैप इट और यू कैन स्किप। टू शेयर फर्स्ट कॉल, अब 4 फीचर की करवानी है मेरे को। टू शेयर फर्स्ट कॉल दैट इज 5700। यहां तक अगर किसी को कुछ पूछना है, यू कैन आस्क। अगेन आई एम रिपीटिंग, यू कैन ओपन कॉल्स इन एरिया अकाउंट और यू कैन स्किप इट बिकॉज ही हैज नॉट आस्क्ड इट इन द पेपर एंड दिस एंट्री अदरवाइज यू विल बी पुटिंग टू द कैश बुक because banker related all entries we write in the cash book when he asked in the paper cash book. I told you in the beginning like cash book का question बहुत कम बार उसने पेपर में पूछा है, but he can ask, so you have to prepare yourself and this is nothing new here. सिर्फ एंट्रीज यहाँ पे ना लिख के आपने कैश बुक में क्या करते जाना है? ट्रांसफर। सो दिस आई कैन इरेज क्योंकि एक्स का सारा हिसाब किताब खत्म हो चुका है। नाउ आई विल बी पासिंग द एंट्री फॉर 4 फीचर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्स। वाई के शेयर सेकंड कॉल के बाद क्या होने हैं? 4 फीचर। एक्स के 4 फीचर की एंट्री करवाइए। शेयर कैपिटल इन एवरी एंट्री ऑफ 4 फीचर इज टू बी डेबिटेड। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी forfeited आर 40। कॉल्ड अप अमाउंट 5 रुपीज एप्लीकेशन, 1 रुपी अलॉटमेंट, 2 रुपी फर्स्ट कॉल, 2 + 1 3 8 से मल्टीप्लाई करना, दिस इज 320। SPR यहां पे रुकना पड़ेगा, उसने 2 प्रीमियम नहीं पे करे, वन इज ऑन अलॉटमेंट एंड अदर इज ऑन फर्स्ट कॉल। ठीक है, अलॉटमेंट के बारे में पहले से मैं नोट्स में आपको बता चुकी हूँ, 32 रुपीज अलॉटमेंट का नहीं हुआ और पूरा का पूरा 40 रुपीज आपका फर्स्ट कॉल का नहीं हुआ, तो प्रीमियम में हर हालत में आपने 72 डालना। अगर यहाँ पे आपने गलती कर दी और आपने 40 into 2 कर दिया, 80 रुपीज डाल दिया, वहीं पे क्वेश्चन गलत, क्योंकि आपका जो अलॉटमेंट का 40 रुपीज प्रीमियम था उसके आपने एडजस्ट कर लिया था टू द एक्सटेंट ऑफ ₹8 इन एक्सेस। 8 रुपया आपके एक्सेस के बच गए थे आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ फेस वैल्यू, so that's why you will be writing 32 of allotments premium and 40 rupees full premium on your first call. Now आगे आपको सिखाया हुआ है a special account भी ओपन, इसमें बैलेंसिंग फिगर ही लिखेंगे। 2 शेयर forfeited, जिन कारणों से 4 फीचर हुआ है वो कारण, एक तो आपका शेयर अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट में आंखें बंद करके आपने 32 ही लिखना, क्योंकि जितना प्रीमियम है उतना ही अलॉटमेंट आएगा, क्योंकि फेस वैल्यू सारी एडजस्ट हो चुकी है। 2 शेयर फर्स्ट कॉल 120 रुपीज, 2 शेयर फर्स्ट कॉल 120 रुपीज। चलिए जी 4 फीचर में अमाउंट डलवाइए। 392 में से मेरे को 142 माइनस करना है, 05 250, दिस इज 52, ठीक है, 240। सो 4 फीचर में 240 आएगा जब आपने एक्स के शेयर क्या किए हैं? 4 फीट। ठीक है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, आंसर पे हम पहुंचे ही नहीं है। नाउ आई एम गोइंग टू पास द एंट्री फॉर मेकिंग योर सेकेंड कॉल ड्यू। अब सेकेंड कॉल में याद रखिएगा 40 शेयर्स क्या हो चुके हैं? खत्म हो चुके हैं। आप 2000 शेयर्स के ऊपर नहीं मंगवाओगे सेकेंड एंड फाइनल कॉल, यू विल बी कॉलिंग आफ्टर डिडक्शन ऑफ दीज 4 फीचर शेयर्स। सो 1960 शेयर्स पे आप अपनी सेकेंड कॉल ड्यू करोगे। लेट्स मेक इट शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड विद, बोलो जी, 1960 शेयर्स into 3 मल्टीप्लाई करिए, 0 18 157 58 डन। सो 5880 2 शेयर कैपिटल 2 SPR। हाँ जी, SPR में 1960 ही जाएगा और इधर जाएगा 3920, 1960 को 2 से मल्टीप्लाई करके, यस इट इज मैचिंग, ग्रैंड टोटल इज सेम 5880। अब हम लोगों ने Y के शेयर क्या करने हैं? 4 फीट आफ्टर, बट बिफोर दैट वी विल बी रिसीविंग द अमाउंट। कितना पैसा मिलेगा? क्योंकि Y ने क्या कर दिया है? डिफॉल्ट, और Y ने कितना हमें सेकंड कॉल नहीं दी? 180 रुपीज। तो 5880 में से 180 माइनस कर दीजिए, 5700 से एंट्री करिए। बैंक अकाउंट डेबिटेड 2 शेयर सेकेंड, ये भी आप कैश बुक में ट्रांसफर करोगे अदरवाइज एंट्री, सेकेंड एंड फाइनल कॉल दैट इज 5700। Now the time has come. This all I need to erase because मेरे को कंपैरिजन करके बताना है कि दोनों के 4 फीचर में कितना कितना पैसा है। ये X के 4 फीचर की एंट्री है। Now the turn has come when I will be passing the entry for Y's 4 feature, right?
वाई ने ना मेरे को फर्स्ट कॉल दी है ना सेकंड कॉल दी है, तो वाई के शेयर फोरफिट करवाइए। शेयर कैपिटल डेबिटेड, SPR debited, 2 share forfeiture a special account, 2 share first call भी 180 थी, second call भी 180 है, 2 share second, दोनों के साथ कॉल लिख लो। दिस इज 180, दिस इज 180। वाई के शेयर कितने हैं बेटे? 60, फुली कॉल्ड अप हैं, 10 के 10 रुपए मंगवाए हैं बिकॉज हिज शेयर्स हैव बीन forfeited आफ्टर सेकंड कॉल। 10 से मल्टीप्लाई करिए 600, दोनों टाइम पे 1 रुपीज क्या था? प्रीमियम था। इट मींस कि 2 से मल्टीप्लाई करिए प्रीमियम के लिए, दिस इज 120, सो दिस इज 360। इसका शेयर फोरफिटेड में 380 है, ठीक है। अब कुल मिला के आपके शेयर कितने फोरफिट हुए? एक्स के 40, वाई के 60। इट मींस कि आई हैव फोरफिटेड शेयर्स इन माय हैंड 100, राइट। वो कहता है 100 में से मैंने 80 शेयर से सिर्फ क्या करने हैं? रीइश्यू, जिसमें वाई के सारे हैं, मींस वाई के 60 है और बाकी एक्स के हैं। इट मींस कि एक्स के 20 है, एक्स के 40 में से 20 शेयर ही रीइश्यू होंगे और वाई के 40 के 60 के 60 होंगे। इट मींस कि एक्स के अगर फोरफीचर में 240 रुपीज है तो मैं सिर्फ इसका 50% यूज कर सकती हूँ। वाई? बिकॉज दिस 240 is beyond 40 shares, but out of that 40 shares I am just reissuing 20 shares, right? तो मैं इसका 120 यूज कर सकती हूँ। मींस मेरे फोर फीचर में एक तो 120 प्लस 360 इसका पूरा। इट मींस कि मैं फोर फीचर का 280 यूज कर, सॉरी 480 यूज कर सकती हूँ। लेट मी रोटेट द कैमरा देयर। सी 120x का आउट ऑफ 240, ठीक है, और हमारे y का 360 में से पूरे का पूरा 360, क्योंकि इसके सारे शेयर क्या हो रहे हैं? रीइश्यू। नाउ रीइश्यू के टाइम पे हम कितने में शेयर रीइश्यू कर रहे हैं? लेट्स सी, लेट्स सी रीइश्यू की एंट्री देखो बेटे। एट व्हाट रेट? 80 शेयर्स 9 पे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिटेड, टू शेयर कैपिटल। 80 शेयर्स 10 से मल्टीप्लाई करके 800, 80 शेयर्स 9 से मल्टीप्लाई करके 720, 80 रुपीज। आपके पास कितना पड़ा था फोर फीचर में? हाउ मच अमाउंट वाज देयर इन योर फोर फीचर? दैट इज व्हाट? 480। तो 480 में से आप कितना यूज कर रहे हो? 80, ठीक है। कैपिटल रिजर्व का आंसर 40 आना चाहिए, 400 आना चाहिए, यस, मैचिंग विद द बुक। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट एंट्री। लेट मी एडजस्ट द कैमरा हियर। अगली एंट्री करो। 80 रुपीज आपने यूज कर लिए फोर फीचर के, ओवरऑल पड़ा कितना था पैसा आपका? 480। तो कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री करो। Share forfeited account debited. With full patience, with the knowledge of every transaction, you will be able to arrive at the right answer. 10 to 12 minutes maximum time period you have to put on this question. That is what 400. और वहां पे 3 मिनट एक्स्ट्रा भी लग सकते हैं, बाय 15 तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि आपने नरेशन भी लिखनी है। Narration, if you will not write, the marks can be deducted. Examiner has 100% right to deduct the marks when you are not writing narration after every transaction. Narration should be in small brackets, should be brief enough. You just have to give an impression to the examiner that you know how to attempt the paper in a right way, right? So अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है, you can send me your queries, you can send me your question number. I will solve that question in the class. In the next period, we are going to discuss about the sample paper of your business studies, right? See you at 40.